As it is. What does it mean? You often use this English word, don't you? What does it mean? As it is means now. Whatever it is, as it is. So we are presenting the now. First meaning of as it is now as it is. And the deeper meaning is nature, because nature is not in the past and not in the future. It's the vibrant present. So as it is also means whatever is in the nature, nature as it is. And the third meaning is life, because nature is life. And life is not past, future. The vibrant life is in the present. So another meaning of as it is life as it is. And the last one, name. This is something interesting. Look, I stay in Shantiniketan, and I read Gitanjali. In perhaps the second and the third song, Tagore had written a very beautiful thing. He said, I must not promote myself in the work I do. I must repeat. I must not promote myself in the work I do. Being inspired, I also thought that I should not promote myself, although as a freelancer all my life, I have promoted my name. And many of you who are present here listening to me perhaps recognize me by my name. So I had a dilemma. If I have to really apply Tagore's philosophy in the work that we do in as it is, what do I do? I cannot promote my name. So after contemplating for a long time, I suddenly got this word on a beautiful morning dawn, as it is. And the moment I got, I was excited because the first four letter is my name, Oshit. And when you complete it, you can even say Oshit is. So, like now, nature, life, I find myself synchronizing it with it, syncing with it. Oshit is. So, the meanings of as it is, quick recapitulation: now as it is, nature as it is, life as it is, and Oshit as it is. Now, that said, I must also give you some idea about what is the philosophy that we have in as it is. We believe in three T's because we are in now, and now is truth and only truth. That's the only capital we have to invest in this life. Past is dead, future is unknown. So we have the whole of now as the truth. And we trust this truth. We don't believe it because belief is a past. You don't believe your finger, which is in the present. Beliefs are philosophies, concepts. This is what I believe. This is what I don't believe. But trust is regardless of your beliefs. And transparency is the ultimate philosophy of life. In as it is, there is no manipulation, there is no gimmick, there is no scarcity marketing. If you don't buy today, the prices are going up. We are not in that scenario. We will give clean, transparent, clear information to you. We will not persuade you. We will propose. At best, we can implore, but we'll never persuade, we'll never influence you. So that's our philosophy. You can trust us that way. And this is the culture that we want to build. There is no teaching here. I'm not your teacher today. I'm sharing something. I will share some experiences of my life, and you will also share with us. So that's the way we grow. That's the way we communicate and exchange. And that's how it is win-win. We absolutely trust that I cannot win at your cost. If I have to win, you have to win too. And if you have to win, you got to make sure that I don't lose. So it's a win-win culture. And ultimate culture is freedom. And see how we travel together in the freedom arena. And this is so loving, so exciting. And I've been living it every day in Shantiniketan. Finally, what are our principles?
the first principle we practice is be like water. If you keep the water in a glass, water becomes a glass. If you keep the water in a cup, water becomes a cup. If you see the water in a river, then water is river. So we have to be flexible like water. Not so much in concept, no judgment, no emblems. So be like water. We learn from nature because nature is the ultimate teacher. Nature is life, as I said. Life is the ultimate teacher. So we don't learn from anyone else at this stage. In as it is, every moment you learn because nature as it is, now as it is. Everything happens for a reason. There is nothing offbeat, there is no adversity. Everything that is right now is the right thing that's going to happen. And it's a very difficult point to accept, but we have learned it hard way. We practice it and we will share everything to you. And we look forward to see one fine morning you will evolve into the realm of trusting this principle that everything happens for a reason. When you know the reason, then you are wisdom. Then you are in wisdom. But if you do not know the reason, then you will be disturbed. So that great philosophy, God, give me the strength to change the things that I can, the serenity to accept the things that I can't, and to realize the difference between the two. And that realization is everything happens for a reason. Next principle, very powerful. There is no one above us, there is no one below us. If we are independent, then we will be above somebody else. If we are dependent, then we shall be below somebody else. Interdependence is a beautiful dependence where together we grow, together we contribute in each other's life. We are complementary to each other. And that's the way we are win win and we shall grow. And last, there is no hidden agenda in as it is, as I've said, that there is no gimmick, there is no manipulation. We would like to establish building a great fraternity, a wonderful community without any hidden agenda. And that's all I had to share about as it is. As it is. What does it mean? You often use this English word, don't you? What does it mean? As it is means now. Whatever it is, as it is. So we are presenting the now. First meaning of as it is now as it is. And the deeper meaning is nature, because nature is not in the past and not in the future. It's the vibrant present. So as it is also means whatever is in the nature, nature as it is. And the third meaning is life, because nature is life. And life is not past, future. The vibrant life is in the present. So another meaning of as it is life as it is. And the last one, name. This is something interesting. Look, I stay in Shantiniketan and I read Gitanjali. In perhaps the second and the third song, Tagore had written a very beautiful thing. He said, I must not promote myself in the work I do. I must repeat. I must not promote myself in the work I do. Being inspired, I also thought that I should not promote myself, although as a freelancer all my life, I have promoted my name. And many of you who are present here listening to me perhaps recognize me by my name. So I had a dilemma. If I have to really apply Tagore's philosophy in the work that we do in as it is, what do? I cannot promote my name. So after contemplating for a long time, I suddenly got this word
on a beautiful morning dawn, as it is. And the moment I got, I was excited because the first four letter is my name, Oshit. And when you complete it, you can even say Oshit is. So, like now, nature, life, I find myself synchronizing it with it, syncing with it. Oshit is. So, the meanings of as it is, quick recapitulation: now as it is, nature as it is, life as it is, and Oshit as it is. Now, that said, I must also give you some idea about what is the philosophy that we have in as it is. We believe in three T's because we are in now, and now is truth and only truth. That's the only capital we have to invest in this life. Past is dead, future is unknown. So we have the whole of now as the truth. And we trust this truth. We don't believe it because belief is a past. You don't believe your finger, which is in the present. Beliefs are philosophies, concepts. This is what I believe. This is what I don't believe. But trust is regardless of your beliefs. And transparency is the ultimate philosophy of life. In as it is, there is no manipulation, there is no gimmick, there is no scarcity marketing. If you don't buy today, the prices are going up. We are not in that scenario. We will give clean, transparent, clear information to you. We will not persuade you. We will propose. At best, we can implore, but we'll never persuade, we'll never influence you. So that's our philosophy. You can trust us that way. And this is the culture that we want to build. There is no teaching here. I'm not your teacher today. I'm sharing something. I will share some experiences of my life, and you will also share with us. So that's the way we grow. That's the way we communicate and exchange. And that's how it is win-win. We absolutely trust that I cannot win at your cost. If I have to win, you have to win too. And if you have to win, you got to make sure that I don't lose. So it's a win-win culture. And ultimate culture is freedom. And see how we travel together in the freedom arena. And this is so loving, so exciting. And I've been living it every day in Shantiniketan. Finally, what are our principles? The first principle we practice is be like water. If you keep the water in a glass, water becomes a glass. If you keep the water in a cup, water becomes a cup. If you see the water in a river, then water is river. So we have to be flexible like water. Not so much in concept, no judgment, no emblems. So be like water. We learn from nature because nature is the ultimate teacher. Nature is life, as I said. Life is the ultimate teacher. So we don't learn from anyone else at this stage. In as it is, every moment you learn because nature as it is, now as it is. Everything happens for a reason. There is nothing offbeat, there is no adversity. Everything that is right now is the right thing that's going to happen. And it's a very difficult point to accept, but we have learned it hard way. We practice it, and we will share everything to you. And we look forward to seeing one fine morning you will evolve into the realm of trusting this principle that everything happens for a reason. When you know the reason, then you are wisdom. Then you are in wisdom. But if you do not know the reason, then you will be disturbed. So that great philosophy, God, give me the strength to change the things that I can, the serenity to accept the things that I can't, and
to realize the difference between the two. And that realization is everything happens for a reason. Next principle, very powerful. There is no one above us, there is no one below us. If we are independent, then we will be above somebody else. If we are dependent, then we shall be below somebody else. Interdependence is a beautiful dependence where together we grow, together we contribute in each other's life. We are complementary to each other, and that's the way we are win-win and we shall grow. And last, there is no hidden agenda in as it is, as I've said, that there is no gimmick, there is no manipulation. We would like to establish building a great fraternity, a wonderful community without any hidden agenda. And that's all I had to share about as it is. ये है मिराकल, एक पिरामिड, ठीक है ना। अब देखिए सबसे नीचे है, कोई पढ़ेगा क्या लिखा है इधर छोटे छोटे अक्षर में? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल। इससे हम शुरू करते हैं हमारी लाइफ। फिजियोलॉजिकल एकदम ये एवरग्रीन ट्रूथ है जो इसने बनाया है। मैं पूरा आपको लीड करता हूं। बच्चे जब जन्म लेते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जब तक हम एडल्ट नहीं हो जाते, एक पीरियड होता है, वो पीरियड का टाइम वेरी करता है, पर साइकोलॉजिकल नीड है, प्राइमरी नीड, प्राइमोडियल नीड, जिसको लेके हम जिंदगी शुरू करते हैं। उसके बाद हम घर बनाते हैं। क्या लिखा है सेफ्टी नीड में? क्या क्या लिखा है? मनी, रिसोर्सेज, शेल्टर। करेक्ट। फिर हमें पैसा कमाना पड़ता है, फिर हम नौकरी ढूंढते हैं, घर बनाते हैं, कि हम सेफ्टी चाहते हैं। बच्चों की कोई सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारा नीड एस्केलेट करता है, देन वी आर लुकिंग फॉर सेफ्टी नीड्स। तब हम कहते हैं मी, माय वाइफ, माय चाइल्ड, जो मैं इंट्रोडक्टरी में बराबर कहता हूं। सबसे पहले मी अलोन, उसके बाद मी, माय वाइफ, माय चाइल्ड। हम लोग आनंद से रहे, हमारी ये दुनिया है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम और भी बड़े होते हैं, जब सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है, उसका चिंता नहीं होता कि हमारा कोई नौकरी है या कुछ पैसे हैं जिससे हमारा काम चल रहा है, मेरा घर है, मैं रहता हूं, मेरा खाने पीने का कोई चक्कर नहीं है। जब माइंड खुलता है, तब इंसान बाहर को दिखता है। इसको क्या कहते हैं? पढ़ो, क्या चाहिए हमें? पढ़ो नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। करेक्ट, फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। फिर हम रोटरी क्लब ज्वाइन करते हैं, लायंस क्लब ज्वाइन करते हैं, टफ ट्रैक की कम्युनिटी बनाते हैं, हम उधर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम दुनिया में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। फिर हम संतुष्ट नहीं होते, फिर हमारा दायरा बढ़ता है, फिर हम कुएं का मेंढक नहीं रह जाते। हम जाते हैं, दुनिया में भी कुछ करना है, मुझे कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है, कुछ काम करना है, सोसाइटी में जाके उसका फुलफिल होता है। क्लब में जाता है, सबके साथ मिलता है, खाना खाता है, सोशलाइज करता है, तब वो सोशल नीड पैदा हो। उसके बाद क्या नीड होता है? जब ये अपने फिजियोलॉजिकल पूरा कर लिया, सेफ्टी पूरा कर लिया, सोशल पूरा कर लिया, फिर वो अपना इज्जत कमाना चाहते हैं। ये नीचे क्या लिखा है? पढ़ो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट, एक्सीलेंस। उसको अभी रिकॉग्निशन चाहिए। वो नेता बनना चाहता है, दादा बनना चाहता है, वो लीडर बनना चाहता है, विलेज प्रधान के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है। अब उसको बाहर में जाके अपना प्रतिष्ठा चाहता है। देखो कितना बढ़िया बनाया। साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम। अब वो समाज में अपना एक वो रखना चाहता है, मैं ये रहता हूं, मैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं ये इधर का नेता हूं, मैं इस क्लब की सेक्रेटरी हूं, सब मुझे जानते हैं। उससे उसका मुरादे पूरा। उसके बाद क्या होता है? ये सारी मीनिंग खत्म हो जाती है लाइफ। ये तो हमने कायम कर लिया, फिजियोलॉजी तो प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं है, सोशल कनेक्शंस भी हमारी बन गई, अब हमें कुछ पोजीशंस भी मिल गया, तब उसको सेरेनिटी आता है। ये जो नीड है, ये जो अपर मोस्ट ट्रायंगल, इसको करके अब्राहम मैस्लो खत्म हो गए थे।
वो बीमार हो गए थे अस्पताल में, उनको सपना आता था, जुबानी बता के गए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बाद ये सारे नीड खत्म हो जाती है। एक सिक्स अल्टीमेट नी 1 2 3 4 5 सिक्स नीड अब्राहम मैस्लो बता के गए थे वर्बली, जिसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नीड। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी मैं रिलेट कर रहा हूं। देखो, हमने टफ ट्रैक किया, बहुत जोश आया, बहुत मोटिवेटेड हुए, अच्छे अच्छे काम किए, पैसे कमाए, इज्जत कमाए, बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत कुछ हम किए, अपने बिजनेस भी बनाया, अपना दायरा तोड़ करके जो चीज कभी सोच नहीं सकते थे ऐसे ऐसे काम किए, फिर फ्रेटर्निटी जाके सोशलाइज किए, टफ ट्रैकर के साथ इतना बंधन हो गया, कुछ लोग अपने आपस में शादी भी कर लिए, आपस में धंधा भी किए और फैल गए। ठीक है ना, ये सारी नीड इससे पूरा हुआ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नीड के ऊपर कोई चार्ट नहीं बना, क्योंकि अब्राहम मिस्लो फिर खत्म हो गए थे, पर वो वर्बली कह के कहते गए हैं इंसान की जिंदगी का अल्टीमेट नीड है ट्रांसेंडेंस, जिसके लिए हम सत्संग करते हैं, जिसके लिए हम प्रेयर करते हैं, भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो है अल्टीमेट नीड। पर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है, ये बाकी सारे पीछे की नीड्स के ऊपर है। तो इसीलिए एलुमनाई में जो काम हमने किया है सेल्फ एस्टीम तक किया है। अभी many of us have crossed 50, many of us have achieved many things, many of us are looking forward to actualize ourselves. So as it is का फोरम, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं, एज इट इज का फोरम में फिर से हम वो स्पीच वीच देना और ताली बजाना, वो करना, लोगों को पैम्पर करना, अरे वाह देखिए ज्यादा जवाब नहीं, ये सारी बातें खत्म हो गई। अभी हम अपने आप की एक्चुअलाइजेशंस के लिए ये फ्रेटर्निटी बना रहे हैं। तो हमारे फ्रेटर्निटी की ऑब्जेक्टिव है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। मैं वही बंदा हूं जो पीछे का सारे काम मैं कराता आया हूं, और मेरी भी अपनी ग्रोथ हुई है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अच्छे स्तर पर हम पहुंच गए। हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे सोच में काफी परिवर्तन आया है। आप लोगों के साथ रह करके, पढ़ करके, सत्संग करके, मेडिटेशन करके हम एक लेवल पे पहुंचे हैं अभी तक, जहां मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। तो ये था मेरा बेसिक प्रेजेंटेशन जो मैं आपको बताना चाहता था, सो दैट यू कैन रीपोजिशन योरसेल्फ and you can clearly think how important is this fraternity, new fraternity that we are creating here. फिर वो वाहवा लेना, ताली लेना और स्पीच मारना, वो तो छोटी बात होगी। इधर हम अपने आप को डिस्कवर करेंगे। इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने रिलेशनशिप को और भी अच्छा बनाएंगे और गहराई में लोगों के जीवन में भूमिका अदा करेंगे, ताकि ये जीने का मकसद पूरा हो। इसको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है? क्या आपने डिस्टिंक्शन को समझा है, इसकी रीपोजिशनिंग को समझा है? हर्षित, एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में है मेरे। ठीक है, ये समझ में आ गया, पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो हम बात करते हैं वो बहुत पर्सनल लेवल पे नहीं होता है, उसको फिर हम कम्युनिटी के हिसाब से कैसे देख रहे हैं? अंजलि, आपने बहुत अच्छा कहा कि इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। मुझे लगता है कि जर्नी पर्सनल है, जर्नी डेफिनेटली पर्सनल है, बट आई थिंक जो एक डेस्टिनेशन है वो कॉमन है हम सब का। तो जिससे हम लोग बात करते हैं ना, कॉन्ग्रेगेशन की बात करते हैं, संगत की बात करते हैं, तो वी विल बी सिटिंग इन लाइक माइंडेड पीपल, अमंग द लाइक माइंडेड पीपल। हर एक अपनी जर्नी में अपनी अपनी जगह पे है। अब औषित से बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई थिंक द सेंट्रल आइडिया, द हब ऑफ द आइडिया विल बी टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, टू कंट्रीब्यूट इन ईच अदर्स लाइव्स, टू हेल्प ईच अदर ग्रो स्पिरिचुअली। तो अभी वो जैसे औषध ने कहा कि वाह वाह वाली बात नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन की जगह कांग्रेगेशन होगा।
Thank you. Anybody else who's like to thank you, Kittu? बहुत अच्छा बोला है आपने. Anybody would like to qualify this? Kittu has just spoken for all of us. She summed it up very well. I couldn't have said more on this. Thank you. I have a opinion here, which might be different. As far as the spiritual awakening or the higher goals are concerned, I have read it a lot, listened to many people. I realize it's a one own journey, and there are no prescriptions. So if this congregation will have such a format where there will be no prescription for but as an example that somebody has experienced this and he would just want to share his personal experience rather than sharing prescription for following a laid down path would be more appropriate. This is what my feeling is. Excellent. और कोई बोलो. आशित, क्वेश्चन क्या था मेरा? थोड़ा सा मिस हो गया. अंजलि पूछ रही थी कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे थे ना औषित प्रेजेंटेशन में, अविनाश, वो कह रही थी कि ये बहुत एक पर्सनल चीज है. इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. तो एक कांग्रेगेशन से या इकट्ठे मिलने से इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? देखो, मेरा तो ये विचार है कि फिर मैं वही कहूंगा कि 1 और 1 2 11 होते हैं. कोलाब्रेशन अल्टीमेटली लोग करते ही क्यों हैं? कोई ना कोई तो पर्पज होता है ना. कोलाब्रेशन होता है, ऐसे तो नहीं होता. तो एक आदमी कई बारी सब कुछ नहीं कर सकता लाइफ में. उसकी भी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं. और कई बारी ऐसा जब साथ इकट्ठे मिलके करते हैं तो एक दूसरे के साथ रहकर जो हम कुछ लर्न करते हैं और उसके बाद हमें नॉलेज होती है. हमारे जो अपने जो पर्सनल फंडे होते हैं वो भी क्लियर होते हैं. कई बारी हमारी लाइफ की थ्योरीज ही कुछ और चल रही होती है. इकट्ठे मिलते हैं, काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है. वन वाइस में मिलने से ही हमने बहुत कुछ लर्न किया है. चाहे औषध ट्रेनिंग देते थे या नहीं देते थे, तो मिलने से भी बहुत कुछ लर्न किया है. तो लर्निंग अल्टीमेटली जब एक्चुअलाइजेशन में पहुंचती है ना, मैं समझता हूँ कि एक्चुअलाइजेशन में लोग पहुंचते तो हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ नीड्स जो होती है, जो बेसिक नीड फिर भी दबी रह जाती है. मैंने बहुत ही रेयर ऐसा सुना होगा कि एक्चुअल में लोग एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे पहुंच गए हैं, क्योंकि उनमें एंगर, गुस्सा या कोई और चीजें फिर भी कुछ ना कुछ लेवल उनका कुछ परसेंटेज तो रह ही जाता है. 100 तरह से तो बहुत रेयर होगा जो इस लेवल पे जाके अचीव में पहुंच जाएगा और वाकई वो फिर उसको हम मानते हैं कि वाकई उसने वो नीड्स पूरी कर ली है. नहीं तो ज्यादातर लोग तो ये बेसिक सेफ्टी नीड्स और ये बिलोंगिंग नीड्स से बाहर ही नहीं आते. मतलब आसपास का अगर एनवायरनमेंट देखा जाए तो ये सारा आपको ऐसे ही मिलेगा. इन्हीं नीड से ही बाहर नहीं आते. तो ये इकट्ठे रहने से फर्क तो पड़ता ही है सारा, क्योंकि वी आर नॉट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. बेसिकली वी आर इंटरडिपेंडेंट. हाँ, क्या बात. ये से this is the mature contribution in the whole thing. देखिए, आप सबने सब ठीक बोला है. अभी रवि ने जो बोला है बहुत अच्छी बात बोला. इट्स ए वेरी पर्सनल जर्नी. अंजलि ने बोला वेरी पर्सनल जर्नी. देखिए, पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिविजुअल को लोगों से अलग कर देंगे, आपका ईगो बीच में आ रहा है. इसीलिए मैं आप सबको साथ लेकर के चीज को शेयर नहीं कर सकता. कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअलिटी में एक सेपरेशन आता है जो स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ है. कहा जाता है जब आपकी साथ वाले की मुक्ति नहीं होगी, आपकी मुक्ति हो ही नहीं सकती. बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर वन. मैं इंडिविजुअल और अलग नहीं मानता. मैं मानता वी आर ऑल वन. इस चीज को हम भूल गए. इस चीज को हम भूल करके दुनिया में इतना वॉर, इतनी लड़ाई क्रिएट कर चुके हैं. सबसे बड़ा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है एक्चुअलाइजेशन फॉर एवरीवन, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड. We are all connected. We are all one. It is only our paradise lost that has caused us divided. All the time we feel I'm separated. मैं आईने में देखता हूं, मैं तो रविकांत हूं, मैं तो अशित नहीं हूं. अशित सोचता है मैं हूं, रविकांत है. ये सेपरेशन हो गया. ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात ही नहीं.
कोई भी एक्चुअलाइज्ड इंसान, कोई भी सेल्फ रियलाइज्ड लोग इस डिवीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर इंडिविजुअल एक डिवाइडेड फिनोमिनन है तो कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम सत्संग करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जहां सारे लोग इकट्ठे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उसमें क्या होता है? पूरा सिनर्जी होता है, क्योंकि अपना शरीर तो अलग अलग है और हमारा आत्मा तो जैसे जैसे रैल्फ वाल्डो इमर्सन का बहुत फेमस ऐसे है ओवर सोल, उसको पढ़ के देखो, सारा सोल मिलकर के एक ओवर सोल होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो बात करते हैं। और जब ये होगा तभी तो मोहब्बत पैदा होगा, तभी तो डिफरेंसेस खत्म होगी, तभी तो लड़ाई खत्म होगी। देश देश में, घर घर में, कम्युनिटी कम्युनिटी में, धर्म धर्म में, ये सारी जो सेपरेशन है, इसके नीड उधर ही से शुरू हुआ है। आई एम एन इंडिविजुअल। जब हम शुरू करते हैं आई एम एन इंडिविजुअल, माई ग्रोथ इज इंडिविजुअलिस्टिक, देन माई कम्युनिटी इज इंडिविजुअल, माई कंट्री इज इंडिविजुअल, my religion is individual, then clash begins. Self-actualization will mitigate all these differences. इसीलिए टैगोर का जो जनगण मन है, हमारा जो टैगोर के लिटरेचर्स है, उधर सारे ने वही लिखा है कि सारे आएंगे इधर, सब आएंगे, मेरा दरवाजा खुला है, सब आओ, सब मिल करके, बिकॉज मेरा पर्सनल मामला नहीं है, ये मेरी रियलाइजेशन, मेरी एक्चुअलाइजेशन, मेरे स्वार्थ नहीं है, मैं शेयर करता हूं, आप भी शेयर करो, अब सब मिलकर के चलते हैं, ठीक है ना? दैट इज द रियल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्योंकि इस दुनिया में आप अकेले पैदा तो हुए नहीं, सबको लेकर के जी रहे हो, तो कैसे आपकी बोलो? मैं ये सोचती हूँ कि लाइक यू हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड द मैस्लोज लॉ। In Maslow's law, there are 5, 6 levels, right? So the topmost level is the spiritual level, which is self-actualization. So when we are thinking of creating a community and doing a sankirtan together or satsang together, so the people who want to go to that level, or who are actually looking for the self-actualization level, if they sit together and do it, then it is understandable. But at the same time, if a person is below those levels, maybe on the first level or the second level, third level, that person will not understand what we are leading to. Why we see, अगर मेरे पास उतना अभी पैसा नहीं है कि मेरे पास ना रोटी ना कपड़ा मकान है, तो फर्स्ट नीड तो मेरी यही होगी ना कि मुझे पहले रोटी कपड़ा मकान मिले। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए तो मैं नहीं सोचूंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। So slowly and steadily the person grows till the self-actualization stage. Although agreed that is the stage which everybody has to go, but everybody has their own journey to reach that level. So how do we see this thing when we think of creating a community for this? Anyone would like to answer this? थोड़ा मैकेनिकल बना दिया ना रवीना। मुझे नहीं लगता इन चीजों को ऐसे देखने की जरूरत है ना? I think she has raised a very valid point, because unless and until I know which level I am and whether my priority is for self-actualization, how would anybody for that matter can pursue me to follow that path? So she has raised a very, very pertinent and important question at this juncture when we are Immediate just about to go. need, I mean, But to answer this, I think ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे सेम बोट पे सेम लेवल पे होंगे। डेफिनेटली कुछ लोग आगे होंगे। तो ये कॉन्ग्रीगेशन का मेन मकसद, ऑब्जेक्टिव यही होगा, टू हैंड होल्ड अदर्स, to make them realize, what is the path. Because sometimes, we go on in circles. We, at one level, we go on in circles and circles. We never realize there is beyond, anything above that, level of hierarchy. So when we are in a group, we understand, how people have traveled, how people have, said stop and moved on to the next level.
rather than going in circles and going in rat race. So for me, it will be a necessary step for people congregating from a different experiences and sharing their experiences towards one objective, one goal, where ultimately we have to go, but we don't know how to go and how to go about it. So I think this is what major objective of this congregation can be. वेरी ब्यूटीफुल. इन फैक्ट रवीना, आप एक चीज सोचिए, अगर सच्चाई आपको पता है और आप जानते हैं लोग सच्चाई को नहीं देखते हैं, क्या आप रुक जाएंगे या इसी को आप मिशन बनाएंगे? सच्चाई तो ये है, सबको ये बताना है. लोग क्यों वहम में रहें, लोग क्यों इग्नोरेंट रहें? यही तो मिशन है. आपकी पॉइंट ही तो सबसे बड़ा पॉइंट है. देखिए, लोग ये डिविजन में नहीं है. ये डिविजन तो एक क्लासिफाई करके मैस्लो ने क्यों बनाया? मैस्लो ने इसलिए नहीं बनाया कि जो फिजियोलॉजिकल नीड में है वो उधर ही रहे. मैस्लो इसलिए बनाए कि वो ऊपर उठे, वो अपनी कमजोरी को, अपनी डिविजन से ऊपर उठे और रियलिटी को रियलाइज करे. नीचे की सारे लेवल परसेप्टिबल है, ओनली द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल रियलिस्टिक है. तो जो बंदे अंधेरे में हैं उनको छोड़ देंगे, वो क्या करेंगे? उसको हम छोड़ देंगे. आपने अगर लाइट को देखा है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो लाइट को आप बांटे, दिया से दिया जलाए. क्यों बताया गया? दीप से दीप जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाओ. आपकी जो पॉइंट है वही तो ऑल द मोर रीजन. एक नंबर. दूसरे नंबर, रवीना आप मुझे बताइए, आपसे मैं जवाब सुनूंगा, लीडर का काम क्या होता है? लोग समझते नहीं, इसलिए लीडर चुप हो जाता है कि लीडर आगे बढ़ के उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता है, जो रवि ने बताया. लीडर का काम क्या है? हैंड होल्डिंग करना. तो हम कैसे आइडियल रह जाएंगे अगर हमें पता है कि लोग इस चीज को, सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं? हम तो और भी मोटिवेटेड होकर काम करेंगे. अभी हम मान लीजिए ये अवेकन लोग, आप सब इधर आ जाते हैं, तो हम एक नहीं है, देयर आर 10 लाइट्स टुगेदर. रोशनी कितनी ब्राइट होगी? और भी आएंगे, और भी बढ़ेंगे. तो इट विल बी टॉप डाउन मूवमेंट. नीचे से क्या था? डाउन टू टॉप. वी आर नाउ सिटिंग ऑन द टॉप, वी आर नीटिंग द लैडर डाउन. यह है, ऊपर से नीचे हम लैडर डाउन करेंगे, क्योंकि एनर्जी तो ऊपर लेवल में. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? डायरेक्टर जो चीज समझते हैं सबको लेके चलते हैं, सबको अपने विजन, अपने एंगल से समझाते हैं. टाटा के अंदर में जो भी एम्प्लॉइज है, जो चाय भी देते हैं, वो भी विजन को जानते हैं, पर उसकी इंटरप्रिटेशन उसके लेवल से की जाती है. तभी तो इतना वर्ल्ड का टॉप मोस्ट एचआर मॉडल बने टाटा. इस चीज की ये क्लैरिटी है कि एज इट इज एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मूवमेंट है. इसमें सारी चीज फिल्टर होके अलग चला जाता है. अब हम सागर में नहा रहे हैं. इतने दिन छोटे छोटे पुकरी में, पॉन्ड्स में, नदी में नहाया है. अभी हम सागर में उतरे हैं. हम सागर की जो गहराई है उसको परसीव करेंगे, और वही रियलिटी है. नदी जब सागर में मिल जाता है तो नदी नहीं रहती, वो तो सागर ही बन जाता है. नदी की अस्तित्व ही नहीं रहती. तो इसीलिए हम सबको ये बताएंगे कि तुम सागर हो, समझो अपने आप. तुम एक बिछड़ी हुई सेपरेटेड नदी नहीं हो, तुम एक सागर हो. तो इसको कनेक्ट करके आगे बढ़ो, देखो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी है. इन बातों के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये फ्रेटर्निटी में हम लोगों को इकट्ठे करेंगे. हम इसकी पोजीशनिंग ही ऐसे करेंगे, हम कोई ऐसी बातचीत नहीं करेंगे जो हम पहले बातचीत कर चुके हैं. हमें भी अपने इवॉल्व होकर बात करना है. हम इसकी जो डूज एंड डॉन्स, इसका जो मेन मैनिफेस्टो बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज लिखी होगी कि हम लोग ये नहीं करते. कोई हम झगड़े में कभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना? जो तुम जहां रहो, जैसे रहो, सब तुम फ्री हो, करो जो तुम योगा कर रहे हो, तुम सीएलसी कर रहे हो, तुम वन वॉइस कर रहे हो, सब करो. पर ये सागर है. एक बात जो रवि ने रेस किया, उसका मैं बताना चाहता हूं. हाँ, इट इज अ पाथलेस पाथ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, एवरीवन ट्रैवल्ड इन दैट कॉमन पाथ, आई हैव चोजन द पाथ लेस ट्रैवल्ड. अब उससे भी ऊपर चला गया है.
वन अपना जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो मोटो है वो है पाथलेस पाथ। ये कोई पाथ नहीं है, इधर हम जरूर कुछ प्रोसेस करेंगे। हमने जो जो सीखा है, जो जाना है, जो प्रोसेस से हम अपने लाइफ को ग्रो किया है, हम आपसे शेयर करें। इसके मतलब ये नहीं है कि ये रूल है, आपको करना ही है। आस्ते आस्ते आप बोलो, इसको ट्राई करो, देखो, फील करो, क्या दिस इज द राइट थिंग टू डू, इससे तुम्हें फायदा हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं अभी किसी की कोचिंग कर रहा हूं, तो उसको मैंने कुछ प्रोसेस बोला है, और वो प्रोसेस कर रहा है, करते करते उसका जो चेंज हो रहा है मैं देख रहा हूं, उसको भी महसूस हो रहा है, इससे चेंज हो रहा है। जैसे ही आप उस चेंज को अपनाएंगे तब उसी को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि असित कोई गुरु है, मैं आप जैसी हूं, पर मैं आप लोगों के साथ चलता हूं। मैं अपने लाइफ को जी रहा हूं, और उस लाइफ से जो चीज मैंने फर्स्ट हैंड एहसास किया है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई अभिमत नहीं है, मैं कोई पाथ आपको नहीं बताऊंगा इस पाथ से चलो। मैं आपको बोलूंगा कि इसको करो, मैं आपसे शेयर करूंगा। आप उसको करके ही जब देखेंगे हाँ ये कनेक्ट मैं कर पा रहा हूं, तभी आप करेंगे। नहीं भी करेंगे तब भी आप एज इट इज में हो। ये कोई पाथ, क्लियर पाथ आपको फॉलो नहीं करवाएगा। अल्टीमेटली आप देखेंगे, आप सब मिल करके, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इस एंड ऑफ द टनल देख चुका हूं, हम्बली स्पीकिंग। तो मैं बता सकता हूं आप सब इस राह पे आ जाएंगे, तब ये राह बनेगा। जब आप इसमें आ जाएंगे तब ये पाथ बनेगा। जब तक आप उस एंड तक नहीं पहुंचते, ये पाथ नहीं, ये खुला रास्ता है। ये एक एक्सपेरिमेंटेशन, ये एक आनंद है, एक जॉय है, एक सेलिब्रेशन। इसी रूप से इसको करना है। आज हमारे पास क्लियर मैनिफेस्टो नहीं है। अभी हम मिल रहे हैं कि अगर मैं एक मीटिंग और भी करना चाहता हूं, क्योंकि आज फाइनल डिसीजन अगर नहीं भी होता है, सिमिलर एक मीटिंग, इसकी पार्ट 2 हम आगे करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का भी मौका देना चाहिए। यू स्लीप ओवर इट, यू सी what inspiration you get from it, then we'll meet once again. And then once we finalize it, then I would like to launch it with a big bang. मैं बहुत लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं। मैं पूरा एज इट इज का पूरा मैनिफेस्टो, पूरा प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। आप सब उधर आके इसके बारे में बोलेंगे, और हमारा मीटिंग कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम डिजाइन करेंगे। करके 4 या 5 अक्टूबर, इस दोनों दिन में एक दिन हम फाइनल करके इसको एक गेट टुगेदर चंडीगढ़ में करेंगे, उसको रन करेंगे। उसके बाद इस चीज को हम दिल्ली में भी करेंगे, कलकत्ते में भी करेंगे, डिफरेंट जगह में करेंगे, ठीक है ना। और इसका फाइनल रिजल्ट आपका प्रोजेक्ट है, उसको मैं फ्रंट में नहीं लाना चाहता, ये ऑटोमेटिक है। क्योंकि ये रास्ता, एक डेस्टिनेशन भी होनी चाहिए, एक शुरुआत होनी चाहिए, एक पटरी होनी चाहिए, ट्रेन होनी चाहिए, और एक विजन भी होनी चाहिए। सब सहमति के साथ, आनंद के साथ जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को देखेंगे, तो आप उधर आ जाएंगे, सब मिल करके उसको बनाएंगे। क्योंकि हमने तो आप सबको लेकर के विकास चलाया बना, मैं अपने लिए नहीं बनाया। आप में से बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं, सारे हमारे लाइफ मेंबर हैं। आपने बहुत धन दिया है, सपोर्ट दिया है, तभी ये बना है। मतलब कहीं ना कहीं आपने जो सीखा है, जाना है, उस राह के साथ ये मिलता है। और मैं आपके साथ देखा हूं, मेरी सारी चीज आपको पता है, ये बंदा कैसा है, कैसा चल रहा है, क्या लेके चल रहा है, इसमें क्या डाइकोटॉमी है, ये क्या बोलता है। तो उसमें से सारी चीज पानी का पानी और दूध का दूध है आपके साथ। तो मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूं, अगर आप सब इस चीज को मानते हैं तो। अगर नहीं मानते तो मैं लॉन्च नहीं करूंगा। देखिए, आज के दिन में मेरे में कोई बायस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं, ना इससे मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मेरी पर्सनल कोई एम्बिशन नहीं। हाँ, कुछ इससे फंड जेनरेट हो जाता है तो विकासालय में जाएगा, हमारे तो जरूरत ही नहीं है। मेरे पास जितना है मेरी जिंदगी चला ले, तो मैं पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए,
नेम फेम हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी तो मैं काम कर, आप लोगों के साथ लेकर के मैं इस काम को करना चाहता हूं। मैंने कुछ पेपर्स बनाया है एज इट इज के पास, जो मैंने एंजल के साथ, किट्टू के साथ शेयर किया है। किट्टू कुछ बताएंगे जो आपने पढ़ा है, आपको कैसा लगा जो हमने लिखा है, जो शेयर किया है? जी अर्षित, मैंने पढ़ा था एंड जितना मेरे को याद है वो यही है कि वो सेल्फ अवेयरनेस की डायरेक्शन में था द एंटायर प्रोग्राम। maybe I'd like to read a few lines. उसमें भी हमने, अर्षित आपने सेम ही बात करी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस की ही बात उसमें Yes. भी कही गई है। सेल्फ अवेकनिंग की बात की गई है Awakening, एंड द न्यू मूवमेंट, इट सेज दैट as it is, Chandigarh launch is about a new movement that begins, and it is as it is offline, it is built on trust, truth, transparency, and this forum calls us to rise together beyond the ordinary. और फोकस के बारे में औषध ने लिखा था जो फोकस रहेगा वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ अवेकनिंग है। And why should we join this? Because humanity is ready for the next step to grow not just individually but collectively in dignity and harmony. काफी सोच समझ के, काफी रिसर्च करके, काफी रिफाइन करके मैंने 2-3 पेज बनाया। एक पेज तो हमने अपने ऊपर भी लिखा है कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, वो सब मैंने आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर किया है। क्योंकि सबसे पहले तो आप हो, ठीक है ना? मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? आप लोग हमारे करीब हो, आप लोगों से मेरा उठना बैठना हुआ, हम ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आप इसमें सहमति से हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तभी ये काम होगा, फिर तो फैलेगा। क्योंकि वी आर टुगेदर वन यूनिट। जी। अगर आप सब इसको अपनाते हैं, आपको लगता है कि हाँ अशित जो सोच रहा है ये सोच तो प्योर है, प्रिस्टीन है। अभी मेरे पास जो 7-10 लोग आगे बढ़ के आए हैं, आप सबको लगता है कि ना ये तो एक बहुत ही जरूरी चीज, बहुत ही अच्छी चीज है, हम लोग मिलेंगे एक बार दोबारा, एक नए रूप से हमारा फिर से कन्वेंशन होगा, पर वो दूसरे किस्म की कन्वेंशन होगा। लाइक विजन की तरफ हम बढ़ेंगे, विजन तो होना ही चाहिए। जी जी। तो सब मिल करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। We are आइडिया looking forward. स्टक थी इनिशियली, तो इनिशियल पार्ट आई मिस्ड आउट। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द इंटेंट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इफ यू कुड हेल्प मी विद दैट। ठीक है, मैं पेपर भेजता हूं आपको, पढ़िए और अगले मीटिंग में जरूर आइए। ठीक है। एनीबडी एल्स? संजीव? दादा चार्ज अप हैं करने के लिए। मेरे को तो लग रहा है कि ये प्रोग्राम बना ही मेरे लिए, हम सबके लिए है। एक टाइम पे तो सबको जरूरत है इन चीजों की। अभी हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट कुछ और है, बट एंड ऑफ द डे तो सबको जरूरत है इस चीज की। और कब समझ आती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जिस टाइम आप कहते हैं ना जब जागे तब सवेरा, ये वही है। जिस टाइम हमें अब लग रहा है, तो मेरे लिए तो ये सवेरे वाली बात है कि कल से शुरू करना चाहिए। चाहे और कोई बोलेगा? Ashit, immediate feeling is we'll look forward for it. Very good. Excellent. Anyone else? जी अर्षित, सेम जैसे अंजलि ने बोला, looking forward. Ravi? I'm very thankful. I have a personal feeling that I want to share, and this is something to do with, Tagore, Shanti Niketan, and Ashit. Ashit knows why I'm, telling this. So I always feel, whenever I'm stuck, you appear as a lighthouse. I mean, I can't, I don't want to say you guru or anything, but you are a lighthouse. You are an anchor. You appear, suddenly, and you provide that, the fillip that you need in life to, see beyond, certain things. So I'm very thankful that, you have thought about it. You have thought about all of us to be part of it. We are really full of gratitude, and, we will look forward to be part of it wholeheartedly. Thank you. Excellent. Ravi?
आप एक चीज का जवाब दो, आपके बगैर मैं क्या हूं? आप लोगों के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आप लोगों की प्यार, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की ट्रस्ट लेकर के मैं सांस ले रहा हूं। Yeah, equally actually. Likewise, we also get inspired, and सो I mean, मैं तो कुछ inspiration is भी not the नहीं हूं right आप word. लोगों के बगैर। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, मैं भाग भाग के इधर क्यों आता हूं? Yes, शांति we निकेतन वो have. तो मेरा हेवन है, उधर से फिर भी मुझे भाग के इधर आना पड़ता है, आप लोगों को देखने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से शेयर करने के लिए। फिर मैं अपने आप को डिस्कवर करता हूं। Yeah. तो जो भी कर रहा हूं आपके साथ ही करूंगा। रवि, इकट्ठे हम लोग एक बहुत सुंदर, आपको याद होगा हर कोर्स के बाद में वो गाना हम गाते थे, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, Yes, sir. Yeah. पता है ना? सो दैट इज द अल्टीमेट थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ बोलेगा? अदरवाइज वी क्लोज द मीटिंग।